So even though if you will see in this for each, I have shown the example of for each, right? Already I shown. Let me check. Flow control, right? Did we see for each demo? Yeah, we see this one. How we can iterate the array, right? So do the practice of this array types of program, so you will get some ideas. Okay? So even though for each loop is more convenient to use, but it has the following limitation. It is not a general purpose loop, है ना? It is applicable only for array and collection. I mean any value you want to fetch from arrays or any value you want to fetch from collections, we can use this for each. So any question related to this for each loop, how it's working, right? Any type of, just what you need to do, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करना होगा, राइट ओनली, है ना? दिस टाइप यू नीड टू चेंज एंड यू कैन फेच. But problem is you don't have the control. Whatever value this array contains, this is going to each and all value it is going to fetch. Okay. So that is the but yeah, some based on our restriction we can use break, we can use continue, right? Some conditions we can use, right? So next we are going to see, we can run it. See 10, 20, 30, 40, 50 and through this for each we are iterating. You got this? So one by one, है ना? Zero index value it will put in a x, then x is going to print, then 1 index, 2 index, 3 index, 4 index. All the index value it will, pick from this array and store in a x variable, and inside this x also we have print in sysount. So that we can do. Next we are going to see the next concept is here. Even though for each loop is more convenient to use, but some limitations, and we can use this for array and collection only. By using for each loop, we should retrieve all values of arrays and collection. Can't we retrieve a particular set of value? I mean, अगर आपका value bulk में है, more than one value है, then only we can get that. Okay. Next statement here is a break. So break already हम लोगों ने स्विच में देखा था. Break is used to break control flow of execution. जो आपका लूप का फ्लो है, ब्रेक मिल गया वहां से ब्रेक कर देगा. We can use break statement within the switch to, है ना, stop fall through. स्विच के अंदर fall through stop करने के लिए हम यूज करते हैं. And inside loop to break the loop execution based on some condition. I mean some conditions we have put on that, based on that condition आपको वो loop break करना चाहते हो, we can use break statement. Inside labeled block to break that block execution based on some condition. Example, switch में हम लोगों ने देख ही लिया है ना how it's work. But in a if case also we can use here, and like we can see यहाँ पे अगर आप लेवल में इसको चेक करोगे, लेवल, तो that also we can see. Okay, so for example ये लूप चल रहा है 1 to 10 चलेगा, 0 to 9, है ना? So जैसे ही इसकी वैल्यू i की वैल्यू डबल इक्वल 5 हुई, ये क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा. Then for this sysout is not going to execute. Let we can see this example break, है ना, break demo. Just I am explaining how this break demo works. So just I am okay. One loop I'm using. I just want to print from 0 to 9. I want to print. Okay. For example, int I is equal to 0. Okay.
I less than equal not equal less than 10, I plus plus, just I am using here. Okay, I am putting one condition. The condition is if I double equal 5. Okay, so either I can put use this body, but I want to print only one statement, so directly I can write here break. Okay, so जैसे ही I की वैल्यू 5 होगी, ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. ओके, so when it is going to break and this statement will not execute. तो नॉर्मली क्या होगा, ये लूप आपका 0 to 4 चलेगा. जैसे इसका वैल्यू 5 हुआ, इट इज गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम हियर, और फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. ओके, so I hope you will understand. See, 0 1 2 3 4. so जैसे i की वैल्यू 5 हुई और i डबल इक्वल 5 मिला इसको, इसके अंदर जो बॉडी है वो क्या मिल गया, ब्रेक. ब्रेक से यहां से क्या हो गया, जो एग्जीक्यूशन 9 टाइम चलने वाला था, ये इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. ओके, but after the break whatever you will write that it will print. Okay, so whatever you will write, this is going to print. Okay, so I hope you will understand break कैसे काम करता है. Okay, so with this loop I try to tell. It's a November verse, no? So I hope you understand how this break is working, right? In case of switch के केस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉल थ्रू को स्टॉप करने के लिए भी यूज दी ब्रेक स्टेटमेंट. नाउ वी कैन सी कि लेवल कैसे यूज करते हैं, और लेवल जस्ट वी कैन सी. So look at this. Int I is equal to 10, and here what we are doing, L colon, this L1 colon, this is label. Okay, this is a label, and what we are doing here, sys out hello, it is going to print. If I double equal 10, in that case what it is going to do, this L1 break L1. Okay, so ये जो L1 है इसको क्या कर देगा, ये this is going to break. So what is going to print, hello. Okay, hello, and I double equal 0, then what it is going to do, okay, then it is going to print out of this, it is going to print sys out and hi. So hi it is not going to print, it is just ending it. It is going to ending it and end print karega just. So we can see another example for this. Break demo 2. Break demo 2. Based on our requirement, we can use this break. So let me try to make this program. Okay, int I is equal to 10. Int I is equal to 10. Then what we are using here, L1 colon. L1 colon is nothing. This is called label 1. Okay, this is called label 1. Okay, I'm using the body of it, and sys out hello. Okay, as you can tell, let me, if I can speak directly, let me know. अभी क्या है कि मैं हेडफोन यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या है कि ये नॉइज कैंसिलेशन नहीं है. नाउ एम आई क्लियर, माय वॉइस इज कमिंग गाइस, एनीवन कैन कंफर्म प्लीज, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 So
Okay, so let me tell you how this level 1 is working. L1, then we are putting here some condition. Just we are putting some condition. If this I double equal 10, okay, this I double equal 10, if this condition is true, then we are breaking this L1. We are just breaking this L1, and after that just we are printing here once it's out, and here we can print just high. Okay, just we can print here high, and later we can print end. After this we are just going to print here end. And what is going to do now? What is going to do? So it is giving some compile time error, say unreachable code. So when it is this condition will true, this will come in a if statement, और if का जो बॉडी है वो ये है, तो ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया हमने ना L1 को ब्रेक कर दिया. सो लेट मी पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड वी कैन चेक इट एंड वी कैन see the output how it's working. See, so what it is printing, just it is printing here. First it is going to print int, then check करेगा I double equal 0, and it is just printing here high, and उसके बाद क्या किया इसने end को print कर दिया. So once we enable this, ये आपकी लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, and this will give here unreachable code. Okay, unreachable code. So let me comment it and sharing this program with you. Okay, you will get some idea ki how this break is working with this label. सर केवल लाइन 1 ब्रेक होगी या फिर वो लूप से बाहर आ गया? ब्रेक भी तो लूप से बाहर ही आ जाता है. ये लूप है ही नहीं पवन. आई डिड नॉट यूज लूप. मैंने यहाँ पे ना इफ लेबल यूज किया है. यू कैन चेक इट. दिस इज द L1 कॉलन एंड इट इज अ बॉडी ऑफ इट. और इसमें अगर सर system डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन हाई के नीचे एक लाइन और लिखेंगे तो वो प्रिंट होगी. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन हाई के जस्ट नीचे आप बात करो यहाँ पे. हाँ प्रिंट होगा, उसमें क्या इशू है. अगर आप ब्रेक यूज नहीं कर रहे हो तो जब ब्रेक L1 अपन वो अगर ब्रेक तो लगा दोगे फिर तो ये नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाली. राइट, ये तो अनरीचेबल कोड बोल रहा है ना कि ये कंपाइल टाइम एरर दे दी, ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ही नहीं. बट अगर ब्रेक नहीं है तब तो कितनी भी लाइन एग्जीक्यूट कराइए. वंस दिस कंडीशन इज ट्रू, एनीथिंग यू कैन प्रिंट हियर. लेवल 1 का सर मतलब क्या निकला? केवल इफ जो ट्रू हुई है, इफ के अंदर जो आए हैं बस वो उससे ब्रेक हो गया, बाहर आ गया. L1 का यूज और आगे देखेंगे हम लोग ना. ये लेबल यूज होता क्या है, मतलब लेबल का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल, वी विल सी इट. अभी इसमें कुछ और चीजें हम लोग सीखेंगे. कंटिन्यू जैसे हम लोग आगे सीखेंगे ना, वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यू, और उस समय थोड़ा सा इसका और आइडिया हमें लग जाएगा. ठीक है, बहुत रियरली यूज होता है. ओके, सो इफ वी आर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट एनीवेयर एल्स वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. सो रिमेंबर दिस. आइदर हम उसको लूप में यूज कर सकते हैं, स्विच में यूज कर सकते हैं, लेवल में यूज कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं है, ना ही स्विच है, ना ही फॉर लूप है, कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते ब्रेक. ओके, तो रिमेंबर इफ के अंदर इन्होंने डायरेक्ट यूज किया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे देगा. नेक्स्ट आपका है कंटिन्यू. नाउ वी कैन चेक कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है. इफ वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप करंट इटरेशन. करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, कंटिन्यू. ओके, लुक एट दिस. कंटिन्यू कैसे काम करता है.
इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल 10, ये कंडीशन ट्रू है तो ये इफ फॉर के अंदर आया और आई की वैल्यू को डिवाइड करेगा 2 से, मॉड्यूल करेगा, अगर उसका जो रिजल्ट है वो डबल इक्वल 0 है तो ये क्या कर देगा, इसको कंटिन्यू कर देगा। मतलब आप क्या करना चाहते हो, सीधा यहाँ पे इवन नंबर को स्किप कराना चाहते हो, राइट। सो फर्स्ट इट इज चेकिंग दी 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, दिस कंडीशन इज फॉल्स। ओके, 0 को 0 से अगर मॉड्यूल करेंगे तो मे बी मॉड्यूल करेंगे 0 को डिवाइड बाय 0, सो रिमाइंडर क्या आएगा, आई थिंक दैट वुड बी द what would be the equal, it would be the equal to 0, so this is going to continue in that case। कंटिन्यू मीन्स क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। फिर से आपका 1 प्लस हो गया, 1 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू है, और 1 को 2 से जब मॉड्यूलेट करेंगे उसका जो रिजल्ट आने वाला है डज नॉट इक्वल 0, सो डज नॉट इक्वल 0 तो इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, इट इज नॉट गोइंग इन अ इफ बॉडी, इट इज नॉट गोइंग इन अ इफ बॉडी, और ये क्या करेगा, आपका कहां पर जाने वाला है, बॉडी से बाहर आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देन आफ्टर प्रिंटिंग दिस अगेन इट विल गो हेयर, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 को 2 से जब मॉड्यूलर करेंगे तो रिमाइंडर उसका डबल इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ये कंडीशन ट्रू हुई, और ट्रू हुई तो इफ के अंदर आया और उसने सिस आउट को प्रिंट नहीं कराया, यहां से क्या कर दिया हमने, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू क्या करेगा, ये इस लाइन को स्किप कर देगा और यहीं से जो आगे का स्टेप लूप का जो होना है प्लस प्लस आइदर माइनस माइनस, वो उस पर भेज देगा इसको, ठीक है। सो लाइक दिस इसने क्या किया कि हम लोगों ने ऑल द इवन नंबर वी हैव स्किप फ्रॉम हियर, और इसमें 1 प्रिंट किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, 9 किया। वी कैन सी कंटिन्यू डेमो, ओके। तो दीज आर दी वन लाइन स्टेटमेंट है, जैसे आपका ब्रेक हो गया, दैट इज ऑल्सो वन लाइन स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू, continue demo, okay, just we are going to see how this continue working, okay। Continue for, just we can use here int I is equal to 0, I less than आपका 10, I plus plus, and here we can use okay if, अगर आपका i का वैल्यू i को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलर है ना, वी आर जस्ट मॉड्यूलर, i मॉड्यूलर टू डबल इक्वल 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, आइदर बॉडी लगा सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट अगर आपको यूज करनी है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। कंटिन्यू, ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ after this continue we are just printing something, sys out लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, okay, and I am just printing here the value of I। तो I की वैल्यू जैसी हमने यहाँ पे प्रिंट कराई, पहली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, और यहाँ से इसने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब है ये सीधा कहाँ भेज देगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, ओके। तो ये 0 इसने स्किप कर दिया, जब इसका वैल्यू 1 हुआ तो उसका रिमाइंडर डबल इक्वल 0 नहीं आया, तो कंटिन्यू, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, और इसने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया। देन अगेन इट इज गोइंग हियर इन वैल्यू 2 ही, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, 2 को 2 से जब मॉड्यूल करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 इक्वल 0 होता है, और फिर नीचे आया और यहाँ से उसने कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, इनको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। तो रिजल्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, 1 3 5 7 9, ओके।
Or what you can do, you can use here, either you can use here ब्रेक भी आप लगा के इसका लूप का समझ सकते हो हाउ इट्स वर्किंग, और कैसे हम लोग इसको डिबग मोड में चला के इसका फ्लो समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने डिबग मोड में इसको रन किया, तो जैसे मैंने इसको डिबग मोड में रन किया, ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया मैंने, लाइन नंबर 10 पे। जस्ट आई क्लिक, डबल क्लिक जब मैं करूंगा यहाँ पे, तो ऐसा एक गोल यहाँ पे ना सर्कल सा यहाँ पे लग जाता है। दिस इज नथिंग कॉल्ड दी ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि जहां आप रोकना चाहो लूप को आप रोक सकते हो, और चेक कर सकते हो कि आई की वैल्यू अभी क्या है। तो आप सिलेक्ट करके, आप आइदर इंस्पेक्ट करके आई के अंदर की वैल्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसको इंस्पेक्ट करें, तो रिजल्ट जो आया वो 0 आया। अब आप देखिए, और 0 डबल इक्वल 0, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स। 0 डबल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है ना। सो कंडीशन वुड बी हियर ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर आएगा, और यहाँ से क्या कर दिया इसने, कंटिन्यू किया, तो ये बाद वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है। यहाँ से कहाँ चला गया, सीधा इंक्रीमेंट पे गया। तो वी कैन चेक इट। यहाँ पे जो एरो बटन है, इनकी मदद से हम लोग जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ के अंदर आया और कंटिन्यू गया, कंटिन्यू, लेट मी क्लिक हियर, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या करने वाला है, इंक्रीमेंट करने वाला है, इट इज अबाउट टू डू द इंक्रीमेंट। ओके, तो ये देखिए अभी 0 है, जैसे इससे बाहर जाएंगे हम, एक स्टेप आगे जाएंगे हम लोग, एक स्टेप आगे जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या होगी, होगी यहाँ पे 2। लेट मी चेक, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 कैसे होगी गाइस। हाँ, मे बी, मतलब मैं इसको है ना, हाउ इसकी वैल्यू तो 1 होना चाहिए ना, कंट्रोल शिफ्ट आई, हियर इज 2। let me run it। It is not printing guys, give me a minute। F6 ना, escape की, unable to touch, F7 no। Okay, I don't have any choice, I should go in this way only, I remember this। wait guys, anyway ब्रेक पॉइंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लेट मी स्किप। ब्रेक पॉइंट को स्किप करने का, आई कैन स्किप ऑल द ब्रेक पॉइंट फ्रॉम हियर। ओके, लेट मी रन इट। एनीवे, ब्रेक पॉइंट का हम लोग किसी और उसमें एग्जांपल देखेंगे। 1 3 5 7 9, तो इन अंदर जो वैल्यू है इसका, ये क्या कर दिया, यहाँ पे स्किप कर दी, राइट। किसकी हेल्प से हमने स्किप कर दी, कंटिन्यू की हेल्प से हमने स्किप कर दी। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करेगा कि करेंट, व्हाट दिस कंटिन्यू डूइंग, वी कैन सी, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप करंट इटरेशन। तो करंट इटरेशन क्या था, कंडीशन ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा, इवन दो ट्रू है, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको आई प्रिंट करना चाहिए, लेकिन उसने करंट जो एग्जीक्यूशन है उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और जो नेक्स्ट स्टेप है इस लूप का, जो फाइनल स्टेप है, वहां पे ये बेसिकली मूव कर जाता है। तो इफ वी आर यूजिंग कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ लूप वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। कंटिन्यू आप ध्यान रखना लूप के अंदर ही यूज होगा। ओके, इनसाइड लूप ओनली वी कैन यूज दिस कंटिन्यू। लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। तो ब्रेक
सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कंटिन्यू भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ओके, इनसाइड लूप वी कैन यूज। नेक्स्ट वी कैन सी, okay, label, break and continue statement. Label, in the case of nested loop, to break and continue a particular loop we should go for label, break and continue. तो ये क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप आप यूज कर रहे हो और उसको आप क्या करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो एंड कंटिन्यू अ पर्टिकुलर लूप, तो हम लोग वी शुड गो फॉर लेबल, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्किंग. सो सी, लेबल 1 यहाँ पे क्या किया, कॉलन एंड देन फॉर लूप, उसके बाद लेबल 2, देन फॉर लूप एंड इनसाइड फॉर लूप अनदर फॉर लूप, और उसके बाद इसके अंदर क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया L1 को. तो L1 को ब्रेक किया है, इट मीन्स ये क्या करेगा, कहाँ से, जो आपका ये वाला L1 वाला है यहाँ से ये बाहर हो जाएगा दिस विल. अगर L2 को ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा, L2 वाला लूप से बाहर हो जाएंगे. ओके, नॉर्मल ब्रेक करेंगे तो जहां पे आप ब्रेक लगा रहे हो वहां से बाहर होंगे हम लोग, राइट. रेस्ट ऑफ थिंग्स विल एग्जीक्यूट. सो ये एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसको. L1 कॉलन, ओके, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस. कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, i प्लस प्लस तो अभी होगा नहीं, कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू 0 है, लेस देन 3 होता है, ट्रू है. इनसाइड इनर लूप बोलेंगे इसको, आइदर हम इसको नेस्टेड लूप बोलेंगे. यहाँ j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल 3, ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू. और इफ i डबल इक्वल j, अब i की वैल्यू भी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है. जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाट वी आर यूजिंग है, ब्रेक. तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, इसका आउटपुट क्या होगा, ब्रेक के केस में क्या होगा, यहां से ब्रेक हुआ, देन ये क्या हुआ, इसने i की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट हियर. तो करंट इसने क्या कर दिया होगा, व्हाट इट डिड, स्किप कर दिया होगा, राइट. ये कंडीशन अगर ट्रू हुई होगी, ये पहली कंडीशन ट्रू हुई होगी, तो इसने फर्स्ट टाइम i एंड j की वैल्यू क्या आनी चाहिए गाइस, 0 एंड 0 आना चाहिए, राइट. i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है. बट ये प्रॉब्लम है कि इफ के अंदर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाले इसको क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा. ओके, देन ये जब ब्रेक किया तो आउटर लूप में गया और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी. 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है. फिर एक फॉर के अंदर आया और यहाँ पे इसकी रीसेट हो जाती, j की वैल्यू होगी 0. अब 0 लेस देन 3 कंडीशन, लेस देन इक्वल 3 कंडीशन ट्रू है. अब बताइए i डबल इक्वल j, i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 0. अब बताइए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आई मीन 0 डबल इक्वल 1 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है. फॉल्स है. फॉल्स है तो ये इफ के अंदर नहीं जाने वाला, क्या करेगा, इफ से बाहर और इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, द वैल्यू ऑफ i एंड j. i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 0 है, ये प्रिंट कर दिया इसने. फिर से गया, चूंकि इंटरनल लूप है वो अभी फॉल्स तो हुआ नहीं है, तो j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या होगी 1. चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है. और i डबल इक्वल j, i की वैल्यू भी 1 हो गई है और j की वैल्यू 1 हो गई, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई. ट्रू हुई तो इसके अंदर आया उसने ब्रेक. ब्रेक का मतलब है कि करंट जो लूप है उसको ब्रेक करेगा. ब्रेक का मतलब है कि लूप क्या करेगा, ब्रेक का मतलब है इससे बाहर होना सीधा, ठीक है. कंटिन्यू का मतलब बाहर नहीं होता है. कंटिन्यू क्या करता है, करंट जो एग्जीक्यूशन है उसको स्किप करके कहाँ भेज देगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे. और ब्रेक क्या कर रहा है, सीधा लूप से बाहर कर रहा है. तो जिसमें आपने ब्रेक लगाया उस लूप से बाहर करेगा, लेकिन बाहर वाले में ब्रेक नहीं है. तो बाहर जब ये बाहर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे आउट ऑफ आएगा, तो इसकी वैल्यू तो फॉल्स हुई नहीं है, यहाँ गया i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई. अब 2 लेस देन 3 कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है. फिर से आया और इसकी वैल्यू रीसेट हो गई, j की 0. अब 2 डबल इक्वल 0 होता नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर आके i की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, j की वैल्यू 0. तो आउटपुट क्या आएगा, 2 एंड 0.
देन अगेन इट विल गो है j प्लस प्लस। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे j की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लेस देन इक्वल 3 होता है, कंडीशन ट्रू है, सॉरी लेट्स सी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ब्रेक तो यहाँ से होने वाला नहीं है, आउट ऑफ ए आया और यहाँ पे i का 2 प्रिंट कर दिया और j की 1 प्रिंट कर दिया। फिर से ये ऊपर गया, j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू भी 2, 2 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है। सो यहाँ पे आया और i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, दोनों आपस में इक्वल होगी। तो क्या इसके अंदर आया यहाँ से ब्रेक। ब्रेक का मतलब जो फॉर लूप है इस वाले यहाँ से बाहर हुआ, लेकिन अभी भी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ऊपर गया और i की वैल्यू 3 होगी। 3 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है गाइस, 3 लेस देन 3। सो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगी। 3 3 से छोटा होता नहीं, फॉल्स हुआ। तो आउटपुट अगर आप देखोगे, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आउटपुट वुड बी 1 0 2 0 2 1। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप इसको यू कैन यूज इट, है ना। देन उसके बाद अगर यहाँ पे L1 ब्रेक L1, अगर आप L1 को ब्रेक कर देते हो तो देखिए लेवल कहाँ पे है, यहाँ पर ऊपर डिफाइन कर रखा है हमने लेवल, ठीक है। तो अगर L1 को ब्रेक किया तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला। ओके, इफ यू आर गोइंग टू जैसे ब्रेक और यहाँ पे लगा दिया आपने L1, तो क्या होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सीधा क्या करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपने लेवल लगाया कहाँ पे है, बताइए। आपने लेवल लगाया आउटर लूप में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने ब्रेक L किया तो क्या करेगा ये, ऐसा नहीं कि करंट लूप से बाहर करेगा, ये क्या करेगा, आउटर लूप से ही बाहर कर देगा आपका। तो आपका कुछ आउटपुट आएगा, द आंसर इज नो। अगर यहाँ पे कंटिन्यू यूज करेंगे, अगर कंटिन्यू यूज करेंगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, ये आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। कंटिन्यू L1 करेंगे, है ना, इफ ये कंटिन्यू जस्ट L1 तो आउटपुट ये आएगा। तो अलग अलग इसमें स्टेप्स, लेट मी ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम। और ये हम लोगों का क्या है, लेबल, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो तीनों का कॉम्बिनेशन में इन्होंने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का। आप भी क्या करोगे इसमें, ब्रेक भी यूज कर लो इसमें, राइट, एंड यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट की ब्रेक जब यूज करें तो आउटपुट क्या आ रहा है। देन व्हाट यू कैन यूज, ब्रेक लेवल, है ना, लेवल को ब्रेक करके देखो, देन यू कैन चेक की आउटपुट क्या आ रहा है। देन यू कैन कंटिन्यू का यूज करके यू ऑब्जर्व की आउटपुट क्या आ रहा है। कंटिन्यू L1 करोगे, देन यू कैन सी कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है गाइस। लेट मी ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम एंड शेयर विथ यू। लेवल, okay, so here is the thing, okay, labeled break continue, label break continue demo, okay, label break continue demo, okay। so let me put in this way, label इन्होंने ये क्या किया है यहाँ पर L1 कॉलन, ओके, एंड यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, ओके, एंड इनसाइड दिस फॉर लूप जस्ट इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 4 के अंदर एक और 4 इन्होंने यूज किया है, इनर लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, इनर लूप। इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल 3 एंड j प्लस प्लस, ओके। सो इफ अगर आपका ये i डबल इक्वल है j, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक के जस्ट बाद में क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। बट ये ध्यान रखना, ये इफ की जो बॉडी के अंदर इसका वो नहीं है, यहाँ पे ना बॉडी नहीं है, तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। लेट मी प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ i एंड प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन, जब सम स्पेस आई एम कॉन्केटिंग हियर एंड j वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सी नाउ लेट मी रन इट और यू कैन सी व्हाट रिजल्ट इज कमिंग। सी द वैल्यू ऑफ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 1 0 2 0 2 1। तो अगर ब्रेक यूज कर रहे हैं तो अब ये आप लोगों के लिए टास्क है,
ये कैसे काम कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ओके, हाउ इट्स वर्किंग. तो नेक्स्ट आई कैन शो यू इसी वाले प्रोग्राम में, ओके, द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू. तो ट्राई टू डू दिस, और अगर ये समझ नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो, अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस, ओके. इसी में अगर आप यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक किया है यहाँ पे L1 को अगर ब्रेक कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ब्रेक L1. अब L1 कहाँ लगाया है आपने, आउटर लूप से पहले लगाया. तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ब्रेक कर रहे हैं, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये जो इनर लूप है ना इससे बाहर करेगा, ठीक है. अगर L1 कर दिया यहाँ पे ना, L1 क्या है, ये लेवल है, ठीक है जी, लेवल. तो ये क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक किया तो बोल किसको ब्रेक कर रहे हैं, L1 को. तो L1 कहाँ लगा है, आउटर लूप, तो ये इससे ही बाहर कर देगा इसको, ठीक है. तो L1 अगर आप लेवल्ड को ब्रेक कर रहे हो, ये कुछ भी आउटपुट नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई और ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया. तो ऐसे आप चाहो कि किसी आउटर लूप को इन पर्टिकुलर सिनेरियो आपको अगर ऐसे स्किप कराना चाहते हो, राइट, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल 1 यूज कर सकते हैं. तो देयर इज नो आउटपुट है. अब अगर इसकी जगह पे हम यूज कर लेते कंटिन्यू यूज कर लेते. कंटिन्यू क्या करता है गाइस, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट न करके सीधा क्या कर देगा, इंक्रीमेंट पे भेज देगा आपको, ठीक है. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप ऑब्जर्व करना कि ये क्या रिजल्ट अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाउ इट्स गिविंग, सी हाउ इट्स गिविंग, है ना. तो ये इंफिनिटी लूप में चला गया गाइस, इट वेंट इन अ इंफिनिटी लूप. let me check an example. It went in a infinity, okay, it went in a infinity loop, okay. तो ये आप इसका आउटपुट कोई खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, इंफिनिटी लूप में चला गया. अगर कंटिन्यू L1 करें तब क्या होगा, कंटिन्यू L1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू L1 किया, देन व्हाट इज गोइंग टू सी गिविंग दिस आउटपुट. आपको इसको चला के जस्ट यू ऑब्जर्व, ओके, यू कैन ऑब्जर्व 1 0 कैसे आया, 2 0 कैसे आया, एंड 2 1 कैसे आया, यू कैन चेक दैट. कंटिन्यू के नॉर्मल कंटिन्यू क्या करता है, यहाँ पे भेज देता, राइट, है ना. इस केस में क्या करेगा, ये L1 के पास भेजेगा. जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, ये क्या करेगा, आउटर लूप में भेजेगा, इनर लूप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है गाइस. तो लाइक दिस इट विल वर्क. तो आप ऑल थ्री का यूज करके एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द आउटपुट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी चैलेंज. अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत आती समझना, प्लीज लेट मी नो दैट, ओके. अगला जो कॉन्सेप्ट है डू वाइल वर्सेस कंटिन्यू, है ना. तो ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता इसमें ना, है ना. सो हाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप डू वाइल को कंटिन्यू में, मतलब ये कैसे काम करेगा ये, ओके, लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है. सो यहाँ पे डू वाइल का पहले तो आपको ये बताओ डू वाइल करता क्या है. एटलीस्ट आप कंडीशन से पहले कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, आप डू वाइल यूज करोगे. बहुत रियरली यूज होता है डू वाइल, ठीक है गाइस. एंड किसी कलेक्शन को, एरे को या डेटा को, डेटाबेस में आपको ये नहीं मालूम कितना डेटा है, तो उसको इटरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइल लूप. डू वाइल हम कब यूज करेंगे कि कंडीशन चेक होने से पहले एटलीस्ट वन टाइम बॉडी एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग डू वाइल यूज करेंगे. और इन नॉर्मल केस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, फॉर लूप. सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फॉर लूप. तो कंटिन्यू आपको पता है कि कंटिन्यू करता क्या है, व्हाट दिस कंटिन्यू डू, करेंट जो एग्जीक्यूशन है उसको स्किप कर देगा और अगले स्टेप पे क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा. जैसे कि प्लस प्लस एक्स लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू होती है, देन यहाँ पे क्या कर दी, कंटिन्यू. तो सीधा ये क्या करेगा, आई मीन जो कंडीशन चेक होती है वहां पे भेज देगा, और ये करंट जो एग्जीक्यूशन इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा. तो कंटिन्यू का मतलब करंट एग्जीक्यूशन को स्किप करके फाइनल उस पर भेजना, आई मीन नेक्स्ट लूप का नेक्स्ट क्या है उस पर ना. सो कंपाइलर विल चेक फॉर
अनरीचेबल स्टेटमेंट ओनली इन केस ऑफ लूप बट नॉट इन केस ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स के केस में ये नहीं चेक करता है, आई मीन अनरीचेबल कोड, और ये क्या करता है लूप के केस में बेसिकली चेक करता है अनरीचेबल, क्योंकि लूप के केस में क्या होता है बार बार चीजें एग्जीक्यूट होती है ना, दैट्स व्हाई। सो आई थिंक हमारा यहाँ पे ना फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। फ्लो कंट्रोल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने व्हाट वी लर्न इन फ्लो कंट्रोल, if else ladder, switch, while, do while and for loop, continue, break and label. So I think something around है ना 10 कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें 10 कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने बात की है फ्लो कंट्रोल में, ठीक है गाइस। तो ऑल 10 कॉन्सेप्ट यू शुड नो। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो आपको कौन सा यूज होगा, फॉर लूप, ओके। और फॉर लूप का यूज करके कुछ हम लोग ना लॉजिकल क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दैट इज डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। इसमें जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर वी विल सी, modifiers we will see, members modifiers we will see, and interface we will talk about, okay guys। तो whatever program I have shared, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो नॉलेज आपको हो जाएगी, लॉजिक्स कैसे आपके दिमाग में डेवलप होंगे ये बुक की मदद से। एक प्रोग्राम आप है ना, वन प्रोग्राम यू आर गोइंग टू सॉल्व, आई मीन यू नो ईच प्रोग्राम एवरी डे, यू नो सॉरी वन प्रोग्राम एवरी डे यू आर गोइंग टू सॉल्व। एंड अगर आप इसके ऑलमोस्ट जो कंट्रोल फ्लो के अगर प्रोग्राम आप बना लेते हो, नॉट जो इसमें ये जो दिए हैं ये वाले नहीं, एक्सरसाइज वालों की बात कर रहा हूँ, ये भी प्रोग्राम आप बनाओगे, प्लस इसमें जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो भी प्रोग्राम आप बनाने का ट्राई करना, ठीक है। तो काफी हद तक हम लोगों को इतना आ जाएगा कि इफ एनी वन गिविंग सम प्रॉब्लम एंड वी वुड बी इन पोजिशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके गाइस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न okay, Java source file structure। So Java source file structure, so a Java program can contain any number of classes। प्रोग्राम की बात हो रही है, ये क्या स्टेटमेंट बोल दिया इन्होंने, a Java program can contain any number of classes। any number मतलब ये आपका प्रोग्राम है, the name of program is here। Hello sir। Yes। Actually, I want to again continue the break. How to using break in 120 pages? Break on 120 pages, okay। On the notes you are talking about? Yes sir, I am talking about the notes। 120 pages, let me check। हाँ, ओके। अब इसकी बात करो, यहाँ पे ब्रेक कैसे और यूज ऊपर जाएं सर, एक बार और ऊपर, और ऊपर सर। यू टॉकिंग अबाउट दिस? सर ब्रेक पे चल, हाँ ये यहाँ जो कंडीशन है सर, इफ x इज इक्वल टू डबल इक्वल्स टू 10, यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, यहाँ कंपाइल टाइम एरर, ये एरर आ गया। एरर जो आ रहा है यहाँ कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाना चाहिए और सिस्टम आउट, ये हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है। मैं नो द रीजन, ये इसलिए नहीं हो रहा है इफ वी आर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट एनीवेयर एल्स, है ना। तो आप ब्रेक कहाँ यूज कर सकते हो, वेर यू कैन यूज द ब्रेक, ब्रेक आइदर यू कैन यूज इनसाइड द स्विच, स्विच हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, और वी कैन यूज इनसाइड द लूप। तो यहाँ ना ही स्विच है ना ही लूप है, राइट, देयर इज नो स्विच, देयर इज नो लूप। तो 2 प्लेसेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रेक का, आइदर हम लोग लूप में यूज कर लें ब्रेक, या आप जो करंट जो इटरेशन फ्लो है उसको आप ब्रेक करना चाहते हो, या आप स्विच के केस में फॉल थ्रू करवाना चाहते हो,
फॉल थ्रू को रोकना चाहते हो, वहां हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं यूज करेंगे, इफ वी आर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट एनीवेयर एल्स वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ गया, मतलब ये आपका यहाँ पे अलाउ ही नहीं है ब्रेक। ओके, ब्रेक यहाँ पे अलाउ ही नहीं है आपका ना, so that's why it's giving this compile time error। आप लूप के साथ यूज करिए प्लस आप स्विच के साथ में यूज करना, तो देन इट विल वर्क। ओके ओके सर। so the next concept we are going to start, it is a Java source files structure। Java source file, a program can contain any number of classes। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये प्रोग्राम है, यू कैन सी हेयर आइदर ये प्रोग्राम, या मैं यहाँ पर टेस्ट क्लास ओपन किया, तो टेस्ट क्लास क्या होगी, ये जो फाइल है ये क्या होगी आपकी टेस्ट नाम से, test.java नाम से। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक फाइल के अंदर कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है गाइस, सो बट एट मोस्ट वन क्लास भी कैन बी डिक्लेयर एट पब्लिक। एक फाइल के अंदर या एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है गाइस, लेकिन जो क्लास पब्लिक है ना, उसमें एक क्लास ही आप पब्लिक डिक्लेयर कर सकती है। यू कैन डिक्लेयर वन क्लास, है ना, वन क्लास कैन बी डिक्लेयर एज पब्लिक इफ देयर इज अ पब्लिक क्लास। अगर आपने मान लीजिए कोई यहाँ पर टेस्ट क्लास बनाई, टेस्ट क्लास के अंदर आपने टेस्ट बनाया, देन सम अदर कुछ आपने कोई स्टूडेंट क्लास बना ली, एम्प्लॉय क्लास बना ली, एंड यू क्रिएट सम अदर क्लासेस एज वेल। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारी क्लासेस बना सकते हो, बट उसमें ये क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज अ पब्लिक क्लास, उसमें से कोई एक क्लास पब्लिक है ना, द नेम ऑफ प्रोग्राम, द नेम ऑफ पब्लिक क्लास मस्ट बी मैच। सॉरी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द नेम ऑफ प्रोग्राम, the name of program and the class which declare as public। remember this guys। जैसे मान लीजिए मैं इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, let me try to make here class student। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना ली, ठीक है गाइस, I create another। ये कोई एरर नहीं दे रहा, सी not giving any error, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन क्लास हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, जो क्लास पब्लिक है उसके नाम से ही आपकी फाइल का नाम एंड पब्लिक क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मैं यहाँ से इसको पब्लिक हटा देता हूँ और जो मैंने नई क्लास बनाई है स्टूडेंट, इसको मैं पब्लिक बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, इसने कंपाइल टाइम एरर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि जो रूल है वी आर वायोलेटिंग दैट रूल। रूल क्या है कि जो क्लास पब्लिक है और उस फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का नाम भी पब्लिक वही होना चाहिए। प्रोग्राम का नाम है test.java और हमने पब्लिक बना दिया स्टूडेंट को, तो वी आर वायोलेटिंग दिस रूल, सो दैट्स व्हाई वी गेट हियर कंपाइल टाइम एरर। तो जो क्लास आपका पब्लिक है उसी क्लास के नाम से आपकी वो क्लास सेव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका कोई भी क्लास पब्लिक नहीं, वी विल सी अबाउट इट, ओके, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर इफ देयर इज नो पब्लिक क्लास। इसमें कोई भी पब्लिक क्लास नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास पब्लिक ना हो, देन वी कैन यूज एनी नेम एज जावा सोर्स। तो आप उसमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, आइदर जो क्लासेस के जो प्रोग्राम के अंदर जो भी क्लासेस का नाम है वो यूज कर लो, या आप कोई XYZ नंबर भी आप सोच सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर उसमें से कोई क्लास, एक भी क्लास अगर पब्लिक हुई तो उस पब्लिक क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। अगर कोई भी क्लास पब्लिक नहीं है उसमें से, तो आप कोई भी नाम ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, अब यहाँ पे कोई भी क्लास पब्लिक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे C.java, ओके, आइदर आप R.java, D.java कुछ भी नाम ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी फाइल से इसको सेव कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें एक क्लास यहाँ पे अगर ये पब्लिक होती
तो आपका क्या होता है यहाँ पे, उसी नाम से आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन कर पाते, ठीक है गाइस। आई मीन रन तो आप फिर अदर से भी कर सकते हो, जितनी भी डॉट क्लास फाइल बने, बट आप जो कंपाइल करोगे वो उसी क्लास से करोगे जिस क्लास से आपने इसको सेव किया है, और जो क्लास आपकी क्या है, पब्लिक है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल केसेस बन जाते हैं, है ना, मल्टीपल केसेस बन जाते हैं। बट व्हाट आई वांट कि टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो एवरीवन शुड नो। जिसमें हम लोग इंटरफेस की बात करेंगे, मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके, मेंबर मॉडिफायर्स वी विल सी, और दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी, और जिसमें हम लोग ना थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको बनाएंगे, देन वी विल वेरीफाई कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, एंड वील अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग, ओके। बट दिस इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, एक उसके अंदर आप एक से ज्यादा क्लास बना दिया और किसी क्लास को पब्लिक बना दिया, उस नाम से सेव नहीं है, नाउ इट विल बी कंपाइल टाइम एरर, तो फिर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, ओके। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, ओके। सो आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन। Anyone have any question, any concern, feel free to ask, guys. Any question, any concern? Guys, no question? So please do the practice. Please do the practice of जो इसमें से ना, ये जो बुक है डेप्थ, इसमें से खुद से ही, मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे मुझे फोर्स करना पड़ रहा है आपको, खुद से ही। Now you all are matured and you understand कि आपको खुद से अपना लॉजिक डेवलप करना है, तो पिक द प्रोग्राम फ्रॉम हियर, है ना, पिक द प्रोग्राम फ्रॉम हियर, और कोशिश करो कि आप उसको पेन कॉपी लेके उसको बनाने का कोशिश करो, और इक्लिप्स से उसको वेरीफाई करो, राइट। देन एक्चुअली यू नो आपका जैसे ना योर ब्रेन स्टार्ट फंक्शनिंग, ओके। तो आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन दिस। तो नाउ इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो जिन लोगों का क्लास जो लेफ्ट है ना, उसके लिए मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, ठीक है गाइस। सो जिन जिन का क्लास लेफ्ट है, तो whoever want to stay can stay, and whoever want to drop can drop, there is no problem, okay. So I think हम लोगों ने एरे तक डिस्कस कर लिया था, बट लेट मी सी कि एरे के बाद क्या कॉन्सेप्ट बचा हुआ था यहाँ पे, ओके। पेज नंबर 128, दिस टाइम अपडेटिंग पेज नंबर 128, जस्ट रेंडमली आई एम अपडेटिंग, ओके। अभी यहाँ पहुंचे नहीं हम लोग, ठीक है। सो आई थिंक चांद, ये लैंग्वेज फंडामेंटल में जो वेरिएबल्स हैं, ये तो आप मतलब है ना नॉर्मल खुद ही से पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको आप एक बार